Hey! Well, hello everyone. Well, I don't think so. It's a very appropriate background, but I am not. I'm fighting the urge to be the most perfect content creator out there. But this is my content creation journey, and I'm really so happy. Oh, this is nice. I think I should do it. But थोड़ा सा ना फिर इसको. Okay. Hello everyone, this is your KJ and welcome back to my YouTube channel. And this is a very impromptu video, as I mostly do, because I really don't have that much time to think about it. But I want to deliver, like when I want to deliver, I want to deliver the top. I want to deliver the top notch quality, and even the quality in my videos, the quality in the tips and open conversation videos that I am doing right now. So this video is all going to be revolving around content creation, how I got started, what are the things that you need to start your content creation journey, and basically some mental tips that how to survive and how to keep doing you. So let's get started without further ado. So the first thing first is how I started content creation is really a very lame story. It's not really lame, it's kind of like inbuilt story, because I just liked making videos, just like cinema shots, video recording myself or video recording the scenery, the video recording everything. So I think it all came from a place. It's really easy for a person to pursue content creation. The person जिसकी hobby already video making में है, editing में है, cinematography में है, थोड़ी creative side है उसके पास. So you don't have to be forcefully getting yourself into content creation just because you think that you can do it. There is no dorai in that you can do it, but you have to do it if you actually are interested in it. Because if you can do it and you are doing it but you don't have any passion and you don't have any interest in doing that, कुछ टाइम बाद तुम ठंडे पड़ जाओगे, तुमसे नहीं होगा ये सारी चीज़ें, तुमसे नहीं वीडियो बनाई जाएगी, तुम बोलोगे यार कंटेंट ऐसा ऐसा करके एग्जॉस्ट हो गया हूँ मैं वो करके, बिकॉज यू आर गोइंग थ्रू प्लानिंग. क्योंकि जिसको कंटेंट क्रिएशन का जो ये सारा क्रिएटिव साइड का ऑलरेडी किसी को भी पहले मतलब आइडिया है, एंड आई एम रियली सॉरी मैं थोड़ा बंद उसमें बना रही थी. तो जिसको भी कंटेंट क्रिएशन का थोड़ा सा भी आइडिया है, एडिटिंग वाला ये सारा जिसको भी इंटरेस्ट है, वो पर्सन इसमें बहुत आराम से हो सकता है. आपकी फील्ड के लिए, आपके टाइप ऑफ इंटरेस्ट के लिए मे भी हो सकता है कोई और फील्ड हो. अगर आप ज़बरदस्ती करना चाहते हैं तो आई विल सजेस्ट नॉट टू, बिकॉज स्टार्टिंग में आप कर लेंगे, देन उसके बाद यू विल बी लाइक exhausted. So you do what you love. So it's like that. So basically मेरा इंटरेस्ट था वीडियो बनाने में, एडिटिंग करने में, and I used to do writing, spoken poetry. I still do now, but in a very very less amount. तो मेरा सोशल मीडिया का ये जो कंटेंट क्रिएशन है, बेसिकली एज अ राइटर स्टार्ट हुआ था. I have a page on Instagram named Coded Secrets, and मैंने ये आई गेस अपने स्कूल के बाद बनाया था. तो ये वाला जो पेज है, यहाँ से मैंने अपनी कंटेंट क्रिएशन की शुरुआत करी थी. मैं यहाँ पे राइटिंग्स लिखती थी, स्पोकन पोइट्रीज कहती थी, और यहाँ से मेरा थोड़ा कंटेंट क्रिएशन में इंटरेस्ट बढ़ा. देन उसके बाद मैंने अपना जो ऑफिशियल आईडी है उसको थोड़ा सा जिसको अपने मज़े के लिए यूज़ करना शुरू किया, बिकॉज आई लाइक मेकिंग वीडियोज़ एंड आई लाइक इवन पोस्टिंग इट. सो मुझे एस्थेटिक्स का बहुत शौक था कि सब चीज़ ऐसे अच्छे से इस तरीके से पोर्ट्रे करके आई प्लीजिंग बनाना चीज़ों को मुझे बहुत पसंद था. तो वैसे मैं नॉर्मली बनाती गई. देन 1 year into 2 year into 3 year into आई वॉज नॉर्मली डूइंग दैट अपने फ़न के लिए. और देन ऑन द सेकेंड हैंड मैंने यूट्यूब भी इसलिए खोला ताकि मैं अपना जो भी एडिटिंग वगैरह करती हूँ, स्पोकन पोइट्री से फ़ोन की मेमोरी बचाने के लिए यूट्यूब पर डाल देती हूँ. लेकिन जैसे यूट्यूब ग्रो करने लगा, जैसे इंस्टाग्राम ग्रो करने लगा, देन मुझे थोड़ा सा लगा कि इसमें मे बी मेरा एक्सपीरियंस है और इसमें मैं प्रॉस्पर कर सकती हूँ. देन मेरा सिंपली फन वाला क्रिएशन एक कंटेंट क्रिएशन में चेंज हो गया. तो दैट्स इट इज़ एज सिंपल एज दैट. नाउ सेकेंड थिंग जो हम सेकेंड टॉपिक में आने वाले हैं, दैट इज बेसिकली व्हाट यू नीड टू
understand before starting content creation. So what you need to understand before starting content creation. So जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में ही पहले एक्सप्लेन करके रखा था कि अगर आप कंटेंट क्रिएशन करना चाहते हैं तो फर्स्ट मेक श्योर कि आपका उसमें जेन्युइन इंटरेस्ट है. आप किसी की देखा देखी में या किसी को कॉपी करने के लिए या किसी की ये कर रहा है ये उसमें अच्छा कर तो मैं भी करता हूँ चलो वहाँ पे फ़ायदा होगा, नहीं. अगर आपका इंटरेस्ट है देन आपका फ़ायदा यस हो सकता है. सेकेंड थिंग इज़ कि कभी भी एक वर्क को एज अ वर्क लेने से पहले उसको एज अ पैशन जांचना बहुत ज़रूरी है. हम इस सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे सिर्फ डॉक्टर्स और इंजीनियर्स बना जाता है, लेकिन अगर आपकी कोई ऐसी हॉबी है जो आपको आपके लाइफ में एक साइड फैक्टर देती है ग्रोथ के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए, विजडम, वेल्थ, फाइनेंशियली, मेंटली एक स्पेस देती है ग्रो करने के लिए, देन यू शुड definitely go for it. There are so many opportunities unexplored because हमने उसको सही exploration path पे डाला ही नहीं है. अगर मुझे नहीं पता होता कि मैं अपने skills को किस तरीके से use कर सकती हूँ तो मेरे लिए social media पे होना एक बेकार सी बात होती. I don't want social media to be something like कि चलो ठीक है टाइम पास करते हैं इसमें. I want, if I am wasting so much time on social media, better be making something out of it. Because my skills lie in that place. So that's what. And now if after all this thing before starting content creation you have to be थोड़ा सा पत्थर mindset in the sense कि बहुत से लोग होंगे जो तुमको as a मतलब sarcastically तो बहुत से लोग बोलेंगे वो आपने vlog नहीं बनाया, आपने reel नहीं डाली, ओ हमारे ये हमारे वो. एंड अगर मैं तुम्हें बताने लगूँ कि मुझे पता नहीं कितने लोगों ने sarcastically ये बोलती है कि ये हमारे जो कुछ लोग होते हैं वो तो genuinely मीन करते हैं, पर कुछ लोगों ने जो होता है कि वाइब से पता लग जाता है कि उन्होंने मुझे ये थोड़ा sarcastically होके थोड़ा मजाक उड़ाने वाले वे में कहा कि I do videos, you better be waiting for me to come and get you and slap you. No, just like jokes apart, you have to be very strong mentally. क्योंकि तो अगर तुम ये सोच के चलते हो कि लाइक मुझे दूसरे क्या बोलेंगे और मैं इसलिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलने वाला, देन बेबी मैं पहले ही बताती हूँ इस वीडियो को यहीं पे बंद कर दो. क्योंकि अगर तुम्हें कोई चीज़ पसंद है और तुम्हारे पास अपनी ही हिम्मत नहीं है उसे पाने के लिए, उसे हासिल करने के लिए, यू आर काइंड ऑफ लुकिंग एट अदर पीपल कि वो अगर कुछ वैलिडेशन देंगे या फिर अगर वो मजाक उड़ाएंगे तो नहीं करूँगा और अगर वो अच्छा बोलेंगे तो मैं करूँगा. बहुत से लोग तुमको आउट ऑफ जेलसी भी गंदा बोलेंगे और आउट ऑफ मतलब फेक लोग भी बहुत से मिलेंगे जो तुम्हें फेकली बोलेंगे वाह तुम तो बहुत अच्छा बनाते हो. यू हैव टू बी योर ओन जज. सो मैं हमेशा एक चीज़ कहती हूँ, right now also I do think what people have to say about me, but the weight of the things that I want to do weighs more than that. मुझे जो करना है वो तवज्जो ज़्यादा रखता है irrespective of what other people will have to say about me. I know I'm doing my own work, I'm not hurting anybody, this is my interest and I'm really proud that I have a hobby. बहुत से लोग मैंने देखे हैं जो अपनी हॉबी को छोड़ देते हैं और फिर वो बहुत खाली सा फील करते हैं कि हमारी लाइफ में कुछ करने के लिए बचा ही नहीं है, बोर होते हैं, ये होता है. नो, अपनी हॉबी जो तुम्हारी होती है अगर वो तुमको कुछ प्रोवाइड कर सकती है, वेदर इट बी मेंटल पीस, तुम्हें पर्सनल ग्रोथ तुम्हारी. कौन से लोग होते हैं जो इतना कैमरा में बात कर सकते हैं, कौन से लोग होते हैं जो पब्लिक स्पीकिंग कर सकते हैं, कौन से लोग होते हैं जो टीचिंग कर सकते हैं, जो सेल्समैन बन सकते हैं. इट ऑल रिक्वायर्स अ स्किल. हर एक पर्टिकुलर में, स्टडिंग में स्किल, टीचिंग में स्किल, चेकिंग में स्किल, डॉक्टरी में स्किल्स, इंजीनियरिंग में स्किल्स, ड्राइंग में स्किल्स, डांसिंग स्किल्स, सिंगिंग स्किल्स. हर एक चीज़ स्किल्स के बिना पूरी नहीं होती. विशफुल थिंकिंग से कुछ नहीं होता. इफ़ यू हैव अ स्किल, एनालाइज इट. कि बहुत से लोगों के साथ तो प्रॉब्लम यही होती है, लोगों को यही नहीं पता होता कि उनका टैलेंट क्या है, उनके अंदर स्किल क्या है. सो अपने अंदर की एक स्किल को, अपने अंदर के एक टैलेंट को रिकॉग्नाइज करना भी एक इतनी बड़ी बात होती है. और उस स्किल का कुछ बना के लेके आना, कुछ बनाना उससे भी ऊपर वाली बात होती है.
तो लोग तो तुमको कहेंगे ही कुछ ना कुछ, लेकिन तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीनी है या दूसरों के हिसाब से जीनी है. बिकॉज आई एम नॉट डिल्यूजनल, बट आई सर्टनली थिंक सो कि पीपल प्रोजेक्ट देयर इनसिक्योरिटीज ऑन यू, स्पेशली व्हेन दे आर मेकिंग फन ऑफ यू और स्पेशली व्हेन दे आर ब्रिंगिंग डाउन. क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो वो खुद करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास इतना गट्स, इतना कॉन्फिडेंस या फिर इतने स्किल्स नहीं है कि वो कर सके. तो इसीलिए जो वो बंदा वो सारी चीज़ें कर रहा है, उनको टेक डाउन करने की या ब्रिंग डाउन करने की, वेदर इंटेंशनली, अनइंटेंशनली, सबकॉन्शियसली, कॉन्शियसली, दे डू ट्राई. नाउ अगर मैं बात करूं इस सब चीज़ों के बारे में, वन मोर थिंग, वट यू नीड बिफोर स्टार्टिंग कॉन्टेंट क्रिएशन. मतलब कि क्या चीज़ें आपको समझना ज़रूरी है बिफोर स्टार्टिंग कॉन्टेंट क्रिएशन. इज अनदर थिंग कि तुम्हें जब स्टार्ट करना है कॉन्टेंट क्रिएशन, जस्ट डोंट बी लाइक दैट कि यार मेरे पास एक्सपेंसिव फ़ोन नहीं है, मेरे पास एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स नहीं है, मेरे पास एक्सपेंसिव कुछ नहीं है. जब मैंने कॉन्टेंट क्रिएशन स्टार्ट किया था, मेरे पास एक 15,000 रुपीज़ का फ़ोन था और 300 रुपीज़ का एक ट्राइपॉड था. उसी फ़ोन से, उसी ट्राइपॉड से, उसी का बेस्ट करके मैं कंटेंट बनाती थी, बिकॉज मुझे बनाना था. फॉर 3 years आई मेड कंटेंट विद दैट फ़ोन एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ ऑल द आउटकम्स दैट आई हैव डन. इतना अच्छा फ़ोन होता है. कुछ लोग होते हैं जिनके पास दुनिया भर के एक्सपेंसिव फ़ोन्स होते हैं, लेकिन उन्हें उस फ़ोन को यूज़ करना नहीं आता है. तो अगर तुम्हारे पास आईफोन भी होगा, DSLR होगा, जितना मर्जी तुम्हारे पास एक्सपेंसिव कैमरा और इक्विपमेंट्स होंगे, बट तुम्हारे पास माइंडसेट और क्रिएटिविटी नहीं होगी उसे किस तरीके से यूज़ करना है, किस तरीके से अपने कंटेंट में इनकॉर्पोरेट करके उसे एक ब्लिसफुल सा कंटेंट बनाना है. तुम्हारे पास जितना मर्जी इक्विपमेंट्स आ जाए वो सब वेस्ट है. लेकिन व्हेन यू आर स्टार्टिंग एज अ बिगिनर, यू डोंट रियली नीड टू इन्वेस्ट बहुत हैवीली. मेरे पास सिर्फ एक 300 रुपीज़ का ट्राइपॉड था, जो कि अभी भी मेरे पास है. मैं तुमको दिखाना चाहूँगी. दिस इज़ द इक्विपमेंट जो मेरे पास है, और ये बहुत छोटा सा है. इसकी हाइट ज़्यादा बड़ी नहीं है, इतनी सी है, बट 3 साल तक मैंने इसे चलाया है. बहुत अच्छा चला है. जितना इसने साथ दिया है, इसको मैं अभी भी यूज़ करती हूँ. तो जब सॉरी, मैं पता नहीं कहाँ देख रही हूँ एक्चुअल में कैमरा, मैंने थोड़ा बैक कैमरा से रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो मुझे थोड़ा आइडिया नहीं है कि मैं सही से आ रही हूँ कि नहीं. तो वही प्रॉब्लम है कि व्हेन यू आर स्टार्टिंग, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ पे ध्यान देना है कि तुम्हें कंटेंट बनाना है. स्टार्टिंग में जिद नहीं पिट देने की मेरे पास तो फ़ोन नहीं है, इक्विपमेंट्स नहीं है. और बेसिकली सच बताऊँ तो अगर तुम ये सारी चीज़ें बोलते हो ना कि मेरे पास एक्सपेंसिव फ़ोन नहीं है, मेरे पास एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स नहीं है, देन तुम बहाने बना रहे हो फॉर नॉट परस्यूइंग योर इंटरेस्ट इन कंटेंट क्रिएशन. इफ़ यू हैव बहाने, जिसे कहते हैं बहाने, दिस इज़ बहाने. जिसने जो चीज़ करनी होती है वो इन सारी चीज़ों से हट के देखता है कि उसने ये चीज़ करनी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द अदर थिंग्स. मुझे पता था कि मैंने वीडियोस बनाना है, कंटेंट क्रिएशन, तो उस टाइम मुझे वर्ड भी नहीं पता था एक वास्ट तरीके से. मुझे था कि मुझे बस वीडियोस बनानी है. तो मैं तो सिंपल ट्राइपॉड चली है, जो मेरे पास फ़ोन, तो उसी से बनाती हूँ. मेरे मोस्ट ऑफ द यूट्यूब वीडियोज़, अगर तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाओगे, स्टार्टिंग की मैंने तो कंसिस्टेंटली पोस्ट करना भी शुरू किया है. तो मेरा ये एक्सपीरियंस है जो मैंने स्टार्टिंग में बनाई थी. आई एम रियली वेल सेटिस्फाइड. हाँ, थोड़ा सा हो सकता है क्वालिटी में डिफर हो सकता है, लेकिन स्किल्स तो वही है जो जिस तरीके से मैं पुराने फ़ोन के साथ यूज़ करती थी, मतलब कंटेंट बनाने के लिए, वो अभी भी नए फ़ोन के साथ यूज़ करती हूँ. सो फ़ोन चेंज हुआ, क्वालिटी चेंज हुई, लेकिन आपकी स्किल जो है वो तो फर्निश हुई है. आपको पता है कि हाउ टू मेक बेटर ऑफ एनी सिचुएशन. सो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा. तो एक्चुअली अगर आपने इस वीडियो को देखने के बाद डिसाइड कर ही लिया है दैट यू वांट टू परस्यू कंटेंट क्रिएशन, इफ़ यू हैव इंटरेस्ट इन कंटेंट क्रिएशन जेन्युइनली, देन तो नेक्स्ट वीडियो में, पहले आप इस वीडियो में लाइक, शेयर और कमेंट करें कि आपको ये वीडियो पसंद आया, बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा. देन आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए. बिकॉज नेक्स्ट वीडियो अगर आप यस कहते हैं तो इट विल बी अबाउट लाइक व्हाट आर द थिंग्स, actual things that you might need while doing content creation. It could be like props, it could be like how to shoot or something like that. So it all be depending on that. So until then, this is your HK saying bye bye, and until next video, adios.